हेलो एवरीवन, वेलकम टू ARB सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UGC नेट पेपर 1 के 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद रेफरेंस टू द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? It is a software that is distributed with its source code. It allows anyone to modify the software to best fit their needs. It is a software that anyone can use on a trial basis before paying for it. Linux is an example of open source software. Right answer is option first, A, B and D. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में A, B एंड D स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलाउज एनीवन टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू बेस्ट फिट देयर नीड्स. लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये तीनों ही स्टेटमेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में करेक्ट है, इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट. स्टेटमेंट सी शेयरवेयर की डेफिनेशन है. शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एनीवन कैन यूज ऑन अ ट्रायल बेसिस बिफोर पेइंग फॉर इट. यहाँ पर हम ओपन सोर्स, फ्रीवेयर और शेयरवेयर के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड पब्लिक के पास अवेलेबल होता है, वो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और फर्दर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. फ्रीवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है. डिवेलपर चूज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीवेयर में सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिवेलपर साइट ओनली. शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फ्री होता है. शेयरवेयर के सारे राइट डिवेलपर के पास होते हैं. शेयरवेयर में सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्रिएट द मोस्ट स्टेबल कंप्यूटर नेटवर्क विद द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन? यूज अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट टू connect devices. Connect devices wirelessly using a mobile phone. Use coaxial cables to connect devices in sequence. Connect devices to a switch using optic fiber cables. Right answer is option 4. Connect devices to a switch using optic fiber cables. ChatGPT is an AI chatbot developed by OpenAI and was launched in November 2022. What does ChatGPT stand for? Chat Generative Pre-trained Transmission, Chat General Pre-trained Technology, Chat Generalized Pre-trained Technique, Chat Generative Pre-trained Transformer. Right answer is option 4. Chat Generative Pre-trained Transformer. हम ICT की और भी फुल फॉर्म्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. फॉरट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, IO इनपुट आउटपुट, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
NCP Network Control Protocol, TCP/IP Transmission Control Protocol, IP Internet Protocol, ARPANET Advanced Research Projects Agency Network, DNS Domain Name System, Email, Electronic Mail, ISDN Integrated Services Digital Network, WWW World Wide Web, ANSI American National Standard Institute, ASCII American Standard Code for Information Interchange, CDAC Center for Development of Advanced Computing, ALU Arithmetic and Logic Unit, CPU Central Processing Unit, COBOL Common Business Oriented Language, CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory, CAD Computer Aided Design, CAM Computer Aided Manufacturing, DVMS Database Management System. Question number 4. Which of the following statements is true about computers? The quality of the pictures taken by a digital camera depends on its resolution, which is measured in megabytes. USB stands for Universal Secure Bus. Microsoft Excel is an example of system software. The size of a computer monitor is measured diagonally across the screen. Right answer is option 4. The size of a computer monitor is measured diagonally across the screen. फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी को हम पिक्सल में मेजर करते हैं। सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनीम and its expansion is incorrectly matched? MIDI Musical Instrument Digital Interchange, LED Light Emitting Diode, MPEG Motion Pictures Expert Group, PDF Portable Document Format. Right answer is option first, MIDI Musical Instrument Digital Interchange की फुल फॉर्म इनकरेक्टली मैच्ड है क्योंकि मिडी की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में एब्रीविएशंस दी है और लिस्ट 2 में उनके मीनिंग दिए हैं, इनको आपस में मैच करना है। इन एब्रीविएशन का यूज हम रिसर्च में रेफरेंस राइट करने के लिए करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, A2 V4 C1 D3। रिसर्च में रेफरेंस में आईडी का मीनिंग होता है द सेम, ए का 2, पोस्ट का मीनिंग होता है आफ्टर, बी का 4, बिट का मीनिंग होता है रेफर टू, सी का 1, विच का मीनिंग होता है नेमली, डी का 3। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है अ सैम्पलिंग टेक्निक that relies on getting information from people who know about a population of interest rather than from members of that population themselves refers to probability sampling, key informant sampling, snowball sampling, quota sampling. Right answer is option second, key informant sampling। की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। इसमें जो रिसर्चर होते हैं जिस पॉपुलेशन से रिलेटेड उन्होंने स्टडी करनी होती है उस पॉपुलेशन से रिलेटेड जो मेंबर होते हैं उनसे डायरेक्टली डेटा कलेक्ट नहीं करते बल्कि उस पर्सन से डेटा कलेक्ट करते हैं जो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपर्टीज रखता है। When the sample has been
randomly selected. Which among the following may be expected in cross-sectional research design? Strong external validity, weak external validity, weak internal validity, strong internal validity. Right answer is option first, A and C. Strong external validity and weak internal validity. रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी हमें कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में बताती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो डेटा हमने सैंपल की हेल्प से कलेक्ट किया है उसको होल पॉपुलेशन पे जनरलाइज्ड करने की बात करती है। जब हम सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में एक्सटर्नल वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग होती है और इंटरनल वैलिडिटी वीक होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, strong external validity and weak internal validity. Identify the non-probability sampling techniques. Systematic sampling, simple random sampling, snowball sampling, purposive sampling. Right answer is option second, C and D. Snowball sampling and purposive sampling नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं। सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सी एंड डी, क्योंकि स्नोबॉल और पर्पजिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस मिलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स ही और शी कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग, सच रिसर्च इज कॉल्ड एज क्लिनिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, डी फैक्टो रिसर्च। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में वेरिएबल पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, t-test can be to test mean differences between two groups. Statement second, ANOVA cannot compare the differences between group means. Right answer is option 3. Statement first is true but statement second is false. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि टी टेस्ट का यूज हम टू ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि एनोवा टेस्ट का यूज हम डिफरेंट ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं और स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है कि एनोवा कैन नॉट कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एनोवा कैन कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मूक के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स दिए हैं और लिस्ट 2 में प्रोग्राम दिए हैं, इनको आपस में मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन सीईसी, एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NITTR चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च और लिस्ट 2 में उनके प्रोग्राम दिए हैं, इनको आपस में मैच करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, A1, B3, C4, D2। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। ए का 1, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन सीईसी नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। बी का 3, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS
आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशनल प्रोग्राम फ्रॉम 9th to 12th प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। सी का 4 NITTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। डी का 2। क्वेश्चन नंबर 13 अ साइंस टीचर assign students a project where they design and conduct an experiment to investigate the effects of environmental factors on plant growth in real time. This assessment is an example of summative assessment, authentic assessment, ipsative assessment, peer assessment. Right answer is option second, authentic assessment. ऑथेंटिक असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो रियल टाइम या रियल लाइफ से रिलेटेड होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑथेंटिक असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो लर्निंग प्रोसेस के एंड में होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग द लर्निंग होती है। इप्सेटिव असेसमेंट में लर्नर को उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। पीयर असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को असेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिए हैं और लिस्ट 2 में अप्रोक्सीमेट एज दी है, इनको आपस में मैच करना है। लिस्ट 1 में पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, और लिस्ट 2 में उनकी अप्रोक्सीमेट एज दी है, इनको आपस में मैच करना। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 A3 B4 C1 D2। सेंसरी मोटर 0 से 2 ईयर तक होती है। ए का 3 प्री ऑपरेशनल बिगिंस अबाउट द टाइम द चाइल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग टू अबाउट 7 ईयर ओल्ड। बी का 4 कंक्रीट ऑपरेशनल बिगिंस अबाउट द फर्स्ट ग्रेड टू अर्ली एडोलसेंट अराउंड 11 ईयर ओल्ड। सी का 1 फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलसेंट टू अडल्टहुड। डी का 2। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16 इन पीक रेट मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फॉर टीचर प्रिपरेशन फॉर क्लास टीचिंग, पीक स्टैंड्स फॉर पेडागोजिकल इंफॉर्मेशनल कंटेंट, पैसिव इनफॉर्मल क्रिएटिव, पैसिव इंटरैक्टिव क्रिएटिव, प्रैक्टिकल इनफॉर्मल कोलैबोरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 पैसिव इंटरैक्टिव एंड क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 17 विच इनफॉर्मल पॉलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फेमस एक्टर जिमी पैकर हैज सेड in an interview that astrology is a real science, therefore scientists now must acknowledge that astrology is actually a science. Appeal to inappropriate authority, red herring, straw man, appeal to ignorance. Right answer is option first, appeal to inappropriate authority। अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी में क्या होता है, एक पर्सन या एक अथॉरिटी जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है फिर भी उस बारे में अपनी राय या अपनी एडवाइस दे रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी फैलेसी। रेड हियरिंग फैलेसी ऐसी फैलेसी होती है जिसमें स्पीकर लिसनर का ध्यान डाइवर्ट करता है। स्ट्रोमैन फैलेसी ऐसी फैलेसी होती है जिसमें एक पर्सन सामने वाले की पोजीशन पे अटैक करता है, सामने वाले की पोजीशन को कम दिखाता है ताकि वो उस पर्सन पे इजीली अटैक कर सके। अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी ऐसी फैलेसी होती है जिसमें हम किसी चीज को इसीलिए ट्रू मान लेते हैं क्योंकि आज तक किसी ने उसको फॉल्स प्रूफ नहीं किया है, इसको हम बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी।
Question number 18. Which fallacy is committed in the following argument? Ambassador cars have almost disappeared. This is an ambassador car, therefore this car has almost disappeared. Equivocation, fallacy of division, hasty generalization, slippery slope. Right answer is option second, fallacy of division. फैलिसी ऑफ डिवीजन ऐसी फैलिसी होती है जिसमें हम जो चीज होल के लिए ट्रू होती है उसको पार्ट के लिए भी ट्रू मान लेते हैं। फैलिसी ऑफ इक्विवोकेशन ऐसी फैलिसी होती है जिसमें एक वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे होते हैं। हैस्टी जनरलाइजेशन ऐसी फैलिसी होती है जिसमें हम इनसफिशिएंट डेटा के बेस पे चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। स्लिपरी स्लोप ऐसी फैलिसी होती है जिसमें हम एक स्मॉल एक्शन के बेस पे इवेंट्स की एक चेन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्याय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फ्रेंस corresponds to उपन्या? द हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक. Whatever has smoke has fire. For example, an oven. The hill has smoke which is invariably associated with fire. Right answer is option 4. The hill has smoke which is invariably associated with fire. Question number 20. As per classical Indian school of logic, which of the following fallacy is committed when the middle term is too wide? अनुपसहारी, बाधित, साधारण, असाधारण. राइट आंसर इज ऑप्शन 3, साधारण. जब मिडल टर्म टू वाइड होती है तो उस केस में साधारण फैलेसी होती है। इंडियन लॉजिक में जो फैलेसी होती है उनको हम हेतुआभास बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेतुआभास। इंडियन लॉजिक में हेतुआभास 5 प्रकार का होता है। स्वव्यभिचारा हेतुआभास, विरुद्ध हेतुआभास, सत्प्रतिपक्षा हेतुआभास, असिद्ध हेतुआभास, बाधित हेतुआभास। स्वव्यभिचारा हेतुआभास 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसहारी। असिद्ध हेतुआभास भी 3 प्रकार का होता है, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्तव असिद्ध। स्वव्यभिचारा हेतुआभास में इर्रेगुलर मिडल टर्म होती है। विरुद्ध हेतुआभास में मिडल टर्म और मेजर टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है। सत्प्रतिपक्षा में 2 मिडल टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है। असिद्ध हेतुआभास में अनप्रूव्ड मिडल टर्म या अनप्रूव्ड हेतु होता है। बाधित हेतुआभास में नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म होती है। असिद्ध फैलेसी, it is unproved हेतु that result in this fallacy। असिद्ध हेतुआभास के 3 टाइप है, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्तव असिद्ध। आश्रय असिद्ध में क्या होता है, इफ पक्ष माइनर टर्म itself is unreal then there cannot be locus of the हेतु। For example, sky lotus is fragrant because it is a lotus like any other lotus। यहाँ पर स्काई लोटस माइनर टर्म अनरियल है। स्वरूप सिद्ध हेतु कैन नॉट एग्जिस्ट इन पक्षा एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। व्याप्तव असिद्ध कंडीशनल हेतु वेयरएवर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। The presence of smoke is due to bad fuel। स्वव्यभिचारा, this is the fallacy of irregular हेतु। स्वव्यभिचारा हेतुआभास 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसहारी। साधारण हेतुआभास में हेतु is too wide, it is present in both पक्ष and विपक्ष। For example, the hill has fire because it is knowable। असाधारण हेतुआभास में हेतु is too narrow, it is only present in the पक्ष।
It is not present in the spaksh and in the vipaksh. For example, sound is eternal because it is audible. अनुपसहारी हेतुआभास में हेतु नॉन एक्सक्लूसिव होता है. हेतु is all inclusive and leaves nothing by way of spaksh or vipaksh. For example, all things are non-eternal because they are knowable. If a jar is temporarily removed from its locus, the non-existence of the jar on the floor is अनुमान, inference, अनुपलब्धि, non-cognition, अर्थपत्ति, implication, उपमान, comparison. Right answer is option second, अनुपलब्धि, non-cognition. Dr. Baba Saheb Ambedkar was associated with Presidency College Kolkata, Khalsa College Mumbai, Siddharth College Mumbai, Milind College Aurangabad, National College Bengaluru. Right answer is option second, B, C and D. Khalsa College, Siddharth College and Milind College. बाबा साहब अंबेडकर खालसा कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज से संबंधित थे, इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड. हु चेयर्ड द फर्स्ट कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर राधाकृष्णन, हंसा मेहता, कमला चौधरी. राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख. क्वेश्चन नंबर 24. यूनिवर्सिटी ऑफ द एंशिएंट पीरियड which has been declared by UNESCO as a heritage site is मिथिला, बल्लभी, पुष्पागिरी, तक्षशिला, नालंदा. Right answer is option 4, D and E. तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है. तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा 1980 में हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है और नालंदा को यूनेस्को द्वारा 2016 में हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है. क्वेश्चन नंबर 25. Destiny of India is being shaped in her classroom. This is stated in University Education Commission, National Education Policy, National Knowledge Commission. Right answer is option second, Education Commission. Next question है, which was the first commission to touch upon the issues of higher education in India indirectly? The Indian Education Commission, the Indian Universities Commission, the Calcutta University Commission, the Hartog Committee. Right answer is option first, the Indian Education Commission. इसको हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए हैं एंड लिस्ट 2 में उनके वर्क्स दिए हैं, इनको आपस में मैच करना है. लिस्ट 1 में दिया है पिंगल, पाणिनि, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और लिस्ट 2 में उनके वर्क्स दिए हैं लीलावती, छंदशास्त्र, अष्टाध्यायी, आर्यभट्टिया. इनको आपस में मैच करना है. राइट आंसर है ऑप्शन 3, A2, B3, C4 एंड D1. पिंगल का वर्क है छंदशास्त्र, A का 2, पाणिनि का वर्क है अष्टाध्यायी, B का 3, आर्यभट्ट का वर्क है आर्यभट्टिया, C का 4, भास्कराचार्य का वर्क है लीलावती, D का 1. राइट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग का है. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है.
लिस्ट 1 में प्रोटोकॉल दिए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और लिस्ट 2 में उनके ईयर दिए हैं, इनको आपस में मैच करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट A3, B1, C4 एंड D2। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया है, A का 3, रियो समिट 1992 में आया है, B का 1, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया है, C का 4, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया है, D का 2। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। Which one of the following has both positive and negative radiative forcing in the climate? Carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, methane. Right answer is option 3, ozone. Question number 30. Groundwater is especially prone to excessive hardness due to calcium and sodium ions, calcium and magnesium ions, sodium and magnesium ions, potassium and calcium ions. Right answer is option second, calcium and magnesium ions. What is the mission of International Solar Alliance? Every home, no matter how far, will have electricity. Every home will harvest solar energy. Every home, no matter how far away, will have light at home. Every home has to be carbon neutral. Right answer is option 3. Every home, no matter how far away, will have light at home. Question number 32. Given below two statements. Statement 1. National Board of Accreditation (NBA) was established by UGC. Statement 2. National Assessment and Accreditation Council (NAC) was established by AICTE. Right answer is option second. Both statements are incorrect. National Board of Accreditation (NBA) was established by AICTE and NAC was established by UGC. ये दोनों ही आपस में इंटरचेंज किए हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। Who among the following were prominent women Vedic scholars? मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपमुद्रा. Right answer is option 4. A, B, C, D and E. मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी और लोपमुद्रा ये सारी ही वुमेन वैदिक स्कॉलर्स हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑल्सो नोन एज एजेंडा 30, एजेंडा 35, एजेंडा 17, एजेंडा 10. Right answer is option first, agenda 30. Question number 35. Which of the following play a role during formation of photochemical smog? Nitrogen dioxide, black carbon, sunlight, VOCs, carbon monoxide. Right answer is option second, A, C and D. Nitrogen dioxide, sunlight and VOCs, volatile organic compounds. Next question है, in non-verbal communication, chronemics refers to person, place, space, time. Right answer is option 4, time. Question number 37. Modern mass communication has the characteristics of being sporadic, continuous, based on a schedule,
Not much dependent on technology, dependent on the use of media. Right answer is option 3, B, C and E. Continuous, based on a schedule and dependent on the use of media. Next question is, in mass communication, the audience is identifiable, relatively small, heterogeneous, homogeneous. Right answer is option 3, heterogeneous. Next question is, the term analog media is primarily derived from newspaper reading, audio recording, computer printing, multimedia production. Right answer is option 2, audio recording. Question number 40. Which of the following is a teacher-centered method? Problem solving, discussion method, inquiry approach, demonstration method. Right answer is option D, demonstration method. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।